Dear friends, welcome to yet another episode of Geet and Ghazal. If you wanted to do something you are passionate about, but you did not have enough courage to do it, today's episode is something you should be watching for. Today's guest is someone who took a bold step in spite of all the odds to pursue something he wanted to do, he was so passionate about. We are going to talk to our guest today, and Mehboob ji is going to tell a little more about him. आज के हमारे मेहमान रिटायर्ड केमिकल इंजीनियर, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और मैथमेटिक्स के प्रोफेसर ही नहीं, लेकिन फ्रीलांस और अनप्लग्ड सिंगर भी हैं, जो जहाँ भी मन चाहा बैठ के गाने लगते हैं। पार्क, हिल टॉप, एयरपोर्ट बोर्डिंग गेट्स, बोट क्रूजेस, न जाने कहाँ कहाँ। नहीं और इसके ज़रिए वो लोगों को इंटीग्रेट करते हैं, मिलाते हैं जी, जुड़वाते हैं। यस। तो इसी ऑब्जेक्टिव से आज हमने इन गेस्ट को यहाँ बुलाया है। इनका नाम है अतुल मिश्रा। अतुल जी, आइए, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम अतुल मिश्रा जी। Yes. सो अतुल जी, आपने प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में 20 साल काम करके रिटायरमेंट ली और फिर मुंबई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पे आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सिखा रहे थे। And then you started your musical group, and these are all so different and diverse fields. If I were to ask you which is that one particular phase in that journey, what would be your response? तो ऐसा है रमेश जी, satisfaction comes from variety of sources. So when I studied in BITS Pilani, Rajasthan for 5 years, I came out as a chemical engineer. Then I got 1 year training in BARC and I became a nuclear engineer. I had to utilize my knowledge gained in Pilani and in BARC to put to good use. So 20 years I worked as a nuclear scientist and I derived a lot of satisfaction from that job. Post which I started feeling that I'm not getting enough time for music. This was the time family was growing, children were growing up. I had the family responsibilities and everything. So this job provided me a very stable life to my children, to my wife, to both of us. My wife is also a scientist. Then I decided to go for a lesser time consuming job, and teaching was always my passion. So I decided to take up a job like as a visiting faculty for discrete mathematics in Mumbai University. 10 years I taught in Somaya College, SIS College, many colleges in and around Bombay, where I taught subjects like discrete mathematics, probability statistics. Now in this job, I started getting time for my music, which was my big passion, I would say. Till then, not the primary passion, but it was a huge passion. And 10 years of this teaching gave me time to even build a musical troupe in Mumbai. And I started doing parallelly shows in Bombay with the support of some more musicians, a troupe of 6 musicians and some singers. And I became an orchestra organizer and singer myself. So this was a mixed phase where I taught as well as I did music. After 10 years, I realized now I can dedicate more time to music further. But at the same time, let me tell you, earning money was not my goal because I got enough pension from my central government job. So I was free to experiment with music. And my experiment started like this. Like I'm like a one-man band. I play the guitar and I go around playing guitar for variety of organizations, army, cancer hospitals, senior citizen homes, orphanages, wherever there is a possibility of doing a one-man show, I started doing that.
Parallelly, professional shows on stage, which were ticketed shows where I could break even. There's no question of earning too much money out of these shows unless you get sponsorships. I never asked for any sponsorships. But idea was to connect with people. Yes. And slowly, now this phase is giving me now, I can tell you, the maximum satisfaction. The third phase of my life when I'm a full-time musician, not a hardcore professional musician. That was never my goal. So, but whatever I'm doing now, I have a very big fan following in social circles, and I have made musical groups all over the country where people are now interacting over music because of my intervention. I call these startups. I have created a variety of WhatsApp groups all across in every city where I have connected all the people together, and these groups are further growing and they are meeting regularly, having dinners, having musical sessions. That is like building communities. That is giving me maximum satisfaction now. Very good. Very good. तो आपने तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन का अभी बता दिया कि आपने ये जर्नी कैसे शुरू की थी तो म्यूजिकल जर्नी कैसे शुरू कम्युनिटीज की, के। जब आपको इसका भी जवाब देता हूं मैं कि यस। मैं सिंगर तो हमेशा से था, गाता तो मैं बचपन से था बिल्कुल। जब से ऑलमोस्ट होश संभाला तब से मैं गाना गा ही रहा था। लेकिन पिलानी में जाने के बाद मैंने गिटार भी सीख लिया। एंड पिलानी बिट्स पिलानी gave me a big stage of audience where I could sing to 2,000 students in one big auditorium. It was a first experience and very enriching. That gave me the confidence that I can become a popular singer. Though that urge to sing to big crowds remained dormant for next 20 years Yes. because I didn't do any shows in my 20 years of Yes. the atomic energy life. Yes. So somewhere that urge had to find its way out, Yes. and guitar gave me the basic support to reach out to people because this is something different. Yes. When I play the guitar and sing, "Ye shaam mastani madhur kiye ja," this gives instant connect with people. Yeah. I realize the old Hindi songs is the greatest medium to connect Indians across the world. There is वेरी ट्रू। nobody who's untouched by these songs. So this journey started with guitar, and with leaving of atomic energy, when I decided to go out to people, then I started playing in every possible location, whether it is trains, whether it is a bus, whether it is a boat, whether it is a boarding gate of an airport, whether it is all these organizations, army. I had done a lot of shows for army people, army camps in India, in Leh, Ladakh, in Himachal Pradesh, China border. Just with guitar, the advantage was I didn't need much of orchestra. I could राइट। walk with my guitar and I could connect. So I saw the power in this instrument and the combination of singing, Yes. playing, and remembering lyrics. Wonderful. In fact, This I want to let my our audience know, though he was talking about India and then all over the world. Right now, this interview is happening right here in Toronto, in Canada. So Atul had been actually traveling to North America. He was for the last 1 month visiting US and going around in so many cities, major cities in US. So we are gonna ask him more questions about his experience over there. But just for our audience, this interview is happening in city of Toronto, which is yet another destination for him in his global pursuit. बिल्कुल। Right? तो अतुल जी, आप कौन सा गाना सुनाएंगे पहले? मैं आपको सबसे पहले सुनाना चाहूंगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, इरशाद। because this I this is a song which attracts people instantly. I like to sing such songs in gatherings. Like recently, I went to Times Square and I took my guitar and I invited some 7, 8 friends to join me, and we started with Zindagi Ek Safar Hai Suhana. Immediately, we saw many more Indians just joining up. Like
being pulled in because तो everyone knows this song and everyone wants to sing along. Yeah. No, I love the song as well, and Yeah, this song gives a very good message also about philosophy of yeah. life. By all means, love to hear. Go ahead. तो जिंदगी एक सफ़र है सुहाना एकापेला स्टाइल इंटरल्यूड्स विद माउथ Bum ba ba 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 bum para ba ra para ba ra para ba ra para ba bum 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 बरडम जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना अरे ओडलई ओडलई ओ 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 अंबर डरडम डरडरडरडम डरडरडम 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 bum 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 चांद तारों से चलना है आगे आसमानों से बढ़ना है आगे अरे चांद तारों से चलना है आगे आसमानों से बढ़ना है आगे पीछे रह जाएगा ये जमाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना टिटी टिटी टे ओडलई ओडलई ओ टिटी टिटी टो ओडलई ओडलई ओ अरे ओडलई ओडलई ओ ओडलई ओडलई ओ हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर मुस्कुराते हुए दिन बिताना यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना Keep it up. डोंट वांट टू स्टॉप यू Yeah. अच्छा मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा इतनी सफर की इस सफर में कोई ना कोई हिलेरियस इंसिडेंट होगा पूछता है कोई तो कहते हैं अरे यार ये दिस वाज रियली फनी Yeah. एंड अनयूजुअल या एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे हिलेरियस इंसिडेंट्स हुए हैं और बहुत सारे इमोशनल इंसिडेंट्स हुए हैं रिसेंटली आई वाज इन नागपुर आई वाज डूइंग ए महफिल इन a place called Ramdas Pit where I had collected the people of Nagpur and called it महफिल नागपुर वो मेरी एक स्टाइल है कि हर शहर की ना एक नाम लगा के महफिल नागपुर महफिल पुणे महफिल शिमला महफिल चंडीगढ़ ऐसे मैं महफिल गोवा ऐसे मैंने ग्रुप बना रखे हैं तो महफिल नागपुर की गैदरिंग चल रही थी मैंने अपनी गाड़ी एक फ्रेंड की गाड़ी वहाँ एक घर के सामने लगा के दी थी साइड में पार्क करके फिर जब मैं लौट के आया तो वहां पे 3-4 वेल बिल्ड लोग खड़े हुए थे एज इफ कि मेरे को मारने वाले हैं वो मालूम पड़ा कि वो किसी बड़े पॉलिटिशियन का घर था वो उनको बहुत ऑब्जेक्शन हुआ कि उनके घर के सामने गाड़ी कैसे लगा दी दे अबाउट टू कॉल द पुलिस बोले हम अभी पुलिस आपके गाड़ी आपकी सीज करने वाली थी जब्त अरे रे आप क्या पुलिस को बुला रहे हैं पहले मेरा गाना तो सुनिए देखिए मैं साथ में गिटार लेके आ रहा हूँ वहीं मैंने गिटार निकाला और मैंने शुरू हो गया मैं बार बार देखो हजार बार देखो ये देखने की चीज है हमारा दिल रुबाटा लिखो उसके बाद तो वो मुझे अंदर घर ले गए चाय पिलाई स्नैक्स मंगाए और बोले कि आपको नागपुर में कभी भी कोई तकलीफ हो कोई भी आपको काम हमको याद कीजिएगा मैं नाम नहीं बताना चाहता लाइक ए वेरी वेल कनेक्टेड वेरी हाई लेवल पॉलिटिशियन
उनसे उनसे मेरी दोस्ती ऐसे हो गई कि वो मतलब जो मुझे मारने आ रहे थे वो मुझे घर ले आके चाय और पानी पिला रहे थे, बहुत अच्छे। क्योंकि मुझको जरा भी संकोच नहीं होता गिटार उठा के बजाने, मेरे को जरा भी हेजिटेशन नहीं होता किसी भी समय। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को ये समझ नहीं आता कि क्या गया, वो तो भी गुस्से में आ रहे थे और ये उसने गाना शुरू कर दिया। This हर is हर एक जगह आपका स्टेज है और आपको yes. स्टेज फ्राइट नहीं है। I was about to यस say यस, that. Yes. मेरे दो दो फंडे हैं। वर्ल्ड इज ए बिग स्टेज, Yes. यू हैव टू कीप परफॉर्मिंग ऑल योर लाइफ, Yes. एंड लाइफ इज अ लॉन्ग पिकनिक, Yes. कीप पिकनिकिंग ऑल योर लाइफ कंटिन्यूअसली, Yes. 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 नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ पिकनिक। ग्रेट मैसेज, ग्रेट मैसेज। लेकिन आप मैसेज दे के नहीं चूकते, अभी आपको ये गाना बताना, पूरा गाना पड़ेगा भाई साहब। तो ठीक है, जरूर गा देंगे। वुड लव टू हियर दिस सॉन्ग। हाँ ओके सर, ये ही यस, आपके ठीक सामने है। पेश है। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाली हो, टाली हो, टाली हो। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब, ये अदा टाली हो, टाली हो, टाली हो। थैंक यू। थैंक यू फॉर ऑनरिंग आवर रिक्वेस्ट। कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है, मुझे भी थोड़ा सा इसको, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, कीड़ा है गानों का। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कुछ करूँ, और आई एम श्योर लाइक मी देयर आर मैनी अदर people those who want to do something but never could gather courage. So what is your advice for people like me and the rest of the देखिए, people, those who are watching this certainly program? I have an advice for people like you who are not trying or planning to earn money out of music. Okay, I am myself a highly non-professional, you can say unprofessional artist. Yes. क्योंकि मैं कभी संगीत से पैसा कमाने की कोशिश नहीं करता। हमारा एम क्या होना चाहिए कि यूजिंग म्यूजिक टू इंटीग्रेट सोसाइटी, टू प्रोवाइड कनेक्ट बिटवीन टू पीपल Yes. who are totally unknown to each other, who don't know each other, how to create trust and camaraderie is the main thing of music. तो आपको क्या करना है? आपको एक तो you have to be thorough with your own singing. You may not be, need not be a great singer, but you should know those 100 songs which should be on your fingertips. Like कभी भी आप किसी भी महफिल में फटाक से आप गा सकें, यानी कौन सा गाना गाऊं, क्या गाऊं। Mostly people are always groping in dark when asked to sing because nothing comes to mind immediately. Yeah. Also, people don't try to remember the lyrics, so every time they have to look around for somebody to support you with lyrics. मेरा कहना है कि कम से कम 20-25 गाने जो आपको पसंद हैं, उनके तो आप लिरिक्स पूरे आप अच्छे से घोट लीजिए, घोट के पी जाइए. Learn the lyrics by heart so that you can instantly start. Guitar is not a must. You can even clap and sing a song on a picnic. Best way to Absolutely. bond with people is to clap and sing. When otherwise people will go into what? Politics, communalism, Yes. some Absolutely. corruption, some inflation. That is not the aim of a picnic. No, when you go out and picnic, you have to do a group activity. Yes. See, when you start talking about politics, immediately people get divided into 2-3 camps. Yes. आपने घर में 20 लोग खाने पे बुलाया है, आपको म्यूजिक से अच्छा कोई बाइंडिंग फैक्टर नहीं मिलेगा. ग्लू, Yes. which Yes. immediately बिल्कुल ठीक है. everyone gets sucked and everybody is comfortable. Yeah. तो इसलिए आपको म्यूजिक के माध्यम से आपको सोसाइटी को जोड़ना है. तो आप जोड़ सकते हैं. आप लाइक माइंडेड लोगों को देखिए. 100% पीपल कैन नेवर बी इंटीग्रेटेड. अगर वो संगीत प्रेमी है, अगर आपको ये शाम मस्तानी पसंद है, तो आप मेरे भाई हैं. Yes. आप मेरे भाई बंधु हैं. Yes.
आपको अगर संगीत में रुचि ही नहीं है, आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट के उसमें इंडेक्स में आपको रुचि है, तो फिर आप अलग भी रहें तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे मतलब मैं आपसे जोड़ नहीं सकता. Still there is a large community, large cross section of people which can be integrated using music. तो आपको करना है, तो आपको पहले आपका जो मेन आपकी जो छुरी है उसको शार्पन करना है. मतलब आपको अपने गाने तो आपके पास बराबर होने चाहिए, अच्छे से गानों कलेक्शन बराबर होना चाहिए, जो गाने सबको जोड़ सकते हैं उनके आपको लिरिक्स याद होने चाहिए, उनके आपके ट्रैक तैयार होने चाहिए. या आपको अगर गिटार सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उकुलेले सीख सकते हैं तो भी सीख लीजिए, कीबोर्ड सीख लीजिए, माउथ ऑर्गन सीख लीजिए, कुछ भी सिंपल इंस्ट्रूमेंट सीख लीजिए, और नहीं तो गानों को फॉर्मेशन और उनके लिरिक्स वो भी सीख लीजिए. Aim is to integrate people. And in Yes. fact, you're right, because it's been said 100 times that music brings people together. Yeah. Yeah, it doesn't divide. Have you had any professional training? Zero training of any kind. Neither singing nor guitar learning. Everything has been picked up from the ambient sounds, ambient noises. Somebody is playing guitar, देख रहे हैं कि क्या कैसे बजा रहा है पिलानी में. How are you doing? What is that you are doing? ऐसे इनफॉर्मल तरीके से गिटार सीखा है. सिंगिंग तो खैर बिल्कुल भी नहीं सीखा. ये तो सिर्फ किशोर दा ही हमारे गुरु हैं, मोहम्मद रफी साहब हमारे गुरु हैं, मन्ना डे, हेमंत कुमार, तलत महमूद, महेंद्र कपूर, इन लोगों को सुन सुन के हम सीखे हैं. Interesting. This is really interesting, huh? Yeah. So जहाँ चाह वहाँ राह. Basically, yeah. जहाँ चाह Where वहाँ. there is a तो will, there is इस a बात way. पे एक और गाना हो जाए. ये तो है. तो महबूब जी ने बड़ा अच्छा क्यों दिया है हमको. अभी मैं थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करूंगा. मैं बताऊंगा आपने सबसे पहली बार जिस गाने को गाया उससे आपको कॉन्फिडेंस आया, और अर्ली डेज एनी सॉन्ग व्हिच वाज दैट, एंड कैन यू प्ले दिस फॉर आवर ऑडियंस. देखिए, वैसे तो बचपन में तो बहुत मेरे को ये देशभक्ति गाना बहुत ज्यादा, जैसे ए मेरे वतन के लोगों, सबसे फेवरेट गाना था मेरा वो. लेकिन मैं कहूंगा जब गिटार मैंने जब सीख लिया, तो जिन गानों में सबसे ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस दिया वो थे पुकारता चला हूं मैं अरे एंड उमर गुल के चैन. पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की. पुकारता चला हूँ मैं. ये दिल लगी ये शौखियाँ सलाम की, यही तो बातें हो रही है काम की. कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की. पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की. पुकारता चला हूँ मैं. डडंग 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 डडंग. सुनी मेरी सदा तो किसी यकीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे. रही यही लगन तो ऐ दिले जवान, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे. पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की.
बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। Thank you. Wow. And this song, whenever I listen, it gives me so much happiness and connects. And this song has been copied into English. This Mm. song has been recently copied into an English song by a group called Ivy York. Oh, I In didn't know that. 2010, it has been released. Two Hindi songs have been copied into English. Ajib Dasta Hai of Shankar Jaikishan and Pukarta Chala Main of Ivy York, which has Okay. acknowledged that they are Okay. taking these two songs from Hindi and making them into English. So the English words are there. So such a powerful song. There are actually, if we come to see, there will be at least 5,000 songs which can be copied into English. See, Hindi music has borrowed a lot from Western music, inspired, even you can say copied. But हिंदी गानों में एक खासियत होती थी जो आपको बताना चाहूंगा मैं कि किसी भी गाने को पूरा का पूरा नहीं लेते थे, वे सिर्फ मुखड़ा लेते थे और उसके बाद में उसका जो अंतरे की ट्यून एकदम ओरिजिनल होती थी। अंतरे की ट्यून कभी किसी भी गाने में नहीं मिलेगी आपको। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ देख लीजिए आप जब कोई बात बिगड़ जाए देख लीजिए। दे आर ऑल इंस्पायर्ड बाय से 100 माइल्स एंड फिर वही रात है इंस्पायर्ड बाय सिंग ए सॉन्ग, सिंग आउट लव। बट इफ यू सी ओनली फ्यू फर्स्ट मुखड़ा इज इंस्पायर्ड, रेस्ट इज टोटली ओरिजिनल। सो एंड इट्स good to borrow, good to spread that music around. I would say कि जब हिंदी गाने को अगर वहां से गाने मिल गए, नहीं तो हम कहाँ सुनते वो सब ट्यून्स, इतनी ब्यूटीफुल ट्यून्स कहाँ सुनने को मिलती। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने लगता है काफी अच्छी रिसर्च करी है, इन एनालिसिस की है और मैं दैट तो शोज योर मैं बिग तो पूरे ग्रास्प। 2-3 घंटे का मैं तो आपको पूरे शो का मतलब मैं कंपेयरिंग खुद ही करता हूँ ना अपने शोज की। मैं बैठ जाता हूँ बीच में, जी जी, मूर्ति की तरह स्थापित हो जाता हूँ बीच में स्टूल लगा के बहुत अच्छा। और अपना गिटार यस, लेते हैं और पूरे गानों के बारे में सब कंपेयरिंग बैकग्राउंड सब देता हूँ मैं। excellent. And you're also educating people, entertaining people, bringing them together. That brings me to a question, next question, because you talked about English songs and Hindi songs and having the lyrics. So I believe like you remember lyrics of more than 2,000 Bollywood songs. How Yeah. does it happen? Does it come to you naturally, or did you Yeah, did you develop this I skill over I the years? realized I realized much later that I remember almost 1,000 songs. Maybe just after coming out of Pilani, I thought I know every song, every lyrics, and I'm singing without singing. Then people were wondering. I was thinking, ये तो सबको मालूम होगा. Then I realized everybody doesn't remember. So then I started. Next 1,000 I added by learning, and they also went into my memory very quickly. अगर आप कंटिन्यूसली देख के गाएंगे तो आप 50 साल भी वही गाना देख के ही गाएंगे, समझ नहीं आएगा। नहीं बिल्कुल ठीक है। जस्ट लाइक एक तो है कि एक गाना Repetition. हम समझो 10 बार 20 बार गाएं, वो खुद ब खुद जहन में बैठ जाता है, अपने दिमाग में बैठ जाता है। फिर वो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है कि भाई देखे बगैर गाओ। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप बिना बिना देखे बगैर गाते हैं। बिल्कुल। और जहां भूलते हैं वहीं देखना है आपको। आपकी याददाश्त में अब एक और गाना सुना दीजिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल अब सुना वक्त दीजिए। हुआ। बोलिए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? फूलों के रंग से, उम्र दिल के चैन, जीवन के सफर में राही, नहीं, जो भी आपको हमारा बस चले तो हम सारे गाने सुन ले, लेकिन वी हैव आल्सो सम कमिटमेंट्स इन टर्म्स ऑफ टाइम फॉर दीस तो ये रात ये पॉडकास्ट। चांदनी, फिर कौन सुनाऊं आपको मैं? ये रात ये चांदनी ठीक है। मेरा सबसे बहुत फेवरेट गाना है। आप ये चूज रात ये करें। चांदनी को, है इरशाद, ना? इरशाद, इरशाद। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की
न आएगी, दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, दास्तां। दास्तां. Lovely. अच्छा, ये एक और गाना हम करेंगे, लेकिन उसमें आप विसल करते हैं कोई भी. हाँ, whistle भी, yeah. नेक्स्ट वन. वो तो बहुत जानते हैं. ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए. दूर रहती है तू, मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं, ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए. शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए. ये इतना लंबा सफ़र और जारी है, तो आप फ्यूचर प्लान्स क्या है आपका? वेयर डू यू टेक दिस म्यूजिकल जर्नी नेक्स्ट? अभी तो ऑलरेडी मेरा पाथ फिक्स हो गया है कि मुझको और को जोड़ना है, और कम्युनिटीज बिल्ड करनी है, और गाने सीखने हैं बहुत सारे, इंग्लिश गाने भी सीखने हैं बहुत सारे. अभी 20-50 40-50 गाने आते हैं मुझको इंग्लिश के. हर लैंग्वेज का गाना सीखना है. तमिल का भी गाना आता है मुझको, कन्नड़ आता है, मराठी आता है. सो उससे क्या होता है, और ज्यादा लोगों से, लोकल लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं. सो आई हैड टू लर्न वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स, आई हैड टू लर्न वेरियस जॉनर्स ऑफ सॉन्ग. लाइक आई एम वीक इन गजल्स, तो मुझे गजल्स और सीखनी है, और मुझको और ट्रैवल करना है, और कम्युनिटीज बिल्ड करनी है अक्रॉस द वर्ल्ड. अभी मैंने सैन डिएगो में भी एक अच्छा प्रोग्राम किया, मैंने इधर कैलिफोर्निया में किया, टाइम्स स्क्वायर में किया. उसके अलावा उससे यहाँ से मेरे इतने जो अभी मेरे जो चाहने वाले हैं जमा हो गए हैं, इन सब की मैं एक कम्युनिटी बनाने वाला हूँ. उसका नाम होगा महफिल अमेरिका. तो जब आप सफ़र करते हैं नए शहर में, तो सिर्फ आप गिटार बजाकर ही एंटरटेन करते हैं कि फिर सिर्फ लोकल गिटार बजा आर्टिस्ट के मिल जाते करते हैं? हैं. पहले से लोगों को आगाह कर देते कि मैं आ रहा हूँ, तो लोग एक एक महफिल तो ऑर्गेनाइज कर ही देते हैं मेरे मेरे नाम पे, बिल्कुल. जहाँ पे 20-50-40 लोग जमा हो जाते हैं, और वो लोग पहली बार दूसरे से मिल रहे होते हैं, तो उनके बीच में एक डिस्कम्फर्ट तो होता ही है कि अननोन है सभी, लेकिन वो धीरे धीरे वो संगीत के माध्यम से वो टूट जाता है वो बंधन. फिर वो लोग आपस में दोस्त बन जाते हैं. फिर मेरा काम खत्म हो जाता है. लखनऊ में करके आ गए खत्म, चंडीगढ़ में करके खत्म, शिमला में करके गए खत्म, नागपुर में कर दिया. अभी वो लोग आपस में मिलते रहते हैं और दोस्ती उनकी बढ़ती रहती है. फिर वो लोग मेरे आने का इंतजार करते हैं कि और भी कुछ में मस्ती करेंगे. Small So this is step at a time. Yes. Very good. Small step. And I'm getting small at a time. inspired. I have found my path. Like this is the path I have to pursue. I don't want to become a big stage artist or a playback singer or any such or earn big money.
That's not the aim. So aim is very simple, and I'm sure I'll be able to achieve it. आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो आप बोल रहे हैं ना, गीत और गज़ल का भी मेरे ख्याल सेम ही मिशन है। हम भी कनेक्ट करना चाहते हैं द बडिंग आर्टिस्ट को, जो आपके जैसे थोड़े पैशनेट हैं हमारे जो इस मीडियम के थ्रू। वी वांट टू कनेक्ट देम विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड and through our online media, and I'm so glad that we are having this conversation today, Conversation. right? Really, Yeah. a lot of eye-opening thought Yes. that brings around a different thinking in our own minds as to Yes. So I'm so happy that we got to meet today, really. And महबूब जी, शायद आपको मालूम नहीं हो, ये हमारे कॉलेज के ही हैं। मैं बताऊं, ये पुरानी दोस्ती जो होती है वो कहीं नहीं जाने की। No, I was कहीं नहीं जाने yeah. की। No, I was बहुत शुक्रिया। so glad to talk to you today, and also I'm sure as I'm so inspired, and your conversation, your ideas, your actions in past and plans for future will definitely inspire our audience as well. Absolutely. So I'm really blessed to have you on this conversation and at Geet and Ghazal, Mehboob ji. बहुत शुक्रिया And Atul ji. अतुल जी। Thank you, thank you so What much. a Thank you. pleasure Yeah. and Definitely. such a joy. Yeah, you have a Thank nice stay in Toronto for rest of the time you are here, and wish you all the best and have a good journey back to India. Take Thank care. you, Ramesh bhai. Thank you, Mehboob bhai. Thank you. Namaskar. Bye bye. Namaskar. Bye. Bye.